Hello everyone, welcome to TechCube Guide classes an initiative by TechCube faculty। आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 10 of our ordinary differential equation series। In our last 9 lecture till now we discussed the introduction of a differential equation, the motivation of a differential equation, the order degree of the differential equation, linearity, non-linearity of a differential equation, formation of a differential equation, types of solution of a differential equation, types of problem of a differential equation. We also discuss this solution of a first order and first degree differential equation, in which we have covered the several method like variable separable method, homogeneous differential equation method, non-homogeneous differential equation method, exact differential equation, non-exact differential equation, linear and Bernoulli's differential equation. In our last 3 video, we also covered the part of a higher order differential equation with constant coefficient, in which we learned the homogeneous differential equation with constant coefficient, and we also seen the non-homogeneous differential equation with constant coefficient, in which we already covered the part of the how to find the complementary function and how to find the particular integral. In this video, we are going to learn the Cauchy-Euler differential equation, which is a type of a differential equation with variable coefficient. So let us start our today lecture. So first we'll try to understand what is the Cauchy-Euler homogeneous linear differential equation. So सबसे पहले हम समझेंगे कि Cauchy-Euler homogeneous linear differential equation का फॉर्म क्या होता है और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई रहेगी वो Cauchy-Euler homogeneous differential equation कहलाएगी. So a linear differential equation of the form an x to the power of n dny by dxn. This is the nth derivative of y with respect to x. यानी ये टर्म बता रही है कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 d to the power of n minus 1 y dx to the power of n minus 1 and up to we are getting a1 x dy by dx plus a0 y is equal to f of x. This equation we can also write in with the help of operator, that is d operator. हम इसे d operator के help से भी लिख सकते हैं. कैसा लिख सकते हैं? an x to the power of n dn y, where dn, the meaning is that this is our nth order derivative, plus an minus 1 x to the power of n minus 1 d to the power of n minus 1 y and up to a1 x dy plus a0 y is equal to f of x. So this equation is said to be our Cauchy-Euler homogeneous equation. So मैं इस इक्वेशन को और हम लोग इक्वेशन को बोल रहे हैं दिस इक्वेशन इज ए वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट. हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी डेरिवेटिव की टर्म है उसके साथ एक वेरिएबल है x, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज आवर वेरिएबल और द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट. लेकिन इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक स्पेशल फॉर्म दिया हुआ है. हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी डेरिवेटिव टर्म है उसी से रिलेटेड एक वेरिएबल है, दैट इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म. यानी अगर हम हर एक टर्म को देखें, वी कैन सी दैट द पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द पावर ऑफ दिस x is same as the order of the derivative of that term. So this is a special kind of equation. This is a variable differential equation, but this equation, the main specialty is that we can convert in the form of a differential equation with constant coefficient. हम इसे linear differential equation with constant coefficient में convert कर सकते हैं. तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे Cauchy-Euler homogeneous equation. हम इसे homogeneous क्यों बोल रहे हैं? homogeneous इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी हमारी वेरिएबल है, जो भी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी जो पावर है और जो हमारा साथ में जो दिया हुआ डेरिवेटिव का टर्म है, उसका ऑर्डर दोनों सेम होगा. इसलिए दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज आवर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड यहाँ पर जो हमारा a0, a1 अप टू an, ये सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और an क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है. सो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट दिस इज आवर Cauchy-Euler होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n. और जो हमारी राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दी हुई है, दैट फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ
इट विल बी आइदर फंक्शन ऑफ एक्स और इट कैन बी सम कांस्टेंट। सो इस तरह के इक्वेशन को हम बोलेंगे कॉची ऑयलर इक्वेशन। सिंपली याद रहे, जब भी कॉची ऑयलर हम देखेंगे, जो भी हमारी डेरिवेटिव रहेगी, जो भी हमारी डेरिवेटिव की टर्म रहेगी, उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा जो कि यहाँ पर x है, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी हर एक टर्म का पावर होगा वो उस टर्म में जो डेरिवेटिव टर्म है उसका जो ऑर्डर होगा उससे मैच करेगा, या तो फिर वही सेम ही होगा। सो उस तरह के इक्वेशन को हम बोलेंगे कॉची ऑयलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है कि हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। सो द बेसिक आइडिया फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉची ऑयलर differential equation is that we have to convert this problem into a linear differential equation with constant coefficient। मैंने पहले ही बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, this problem is a differential equation with variable coefficient। इसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे, इस इक्वेशन को हम आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन कर सकते हैं। That is how to find the complementary function and how to find the particular integral. That thing we already know. So that's why we can convert this problem easily into a linear differential equation with constant coefficient. So now we are going to discuss how we can convert and how we can find the solution of this kind of a Cauchy-Euler equation. So हमने लिया है यहाँ पर ऑपरेटर वाला फॉर्म of Cauchy-Euler equation, that is an x to the power of n dny plus an minus 1 x to the power of n minus 1 d to the power of n minus 1 y and up to a naught y is equal to f of x। और हमने d क्या है, आपका d का मीनिंग है d by dx। अगर हम d2 लिखेंगे that is our second order operator। if I write dn that is our nth order operator। so for that we want to convert this equation into a form of a linear differential equation with constant coefficient। तो हम इसे linear differential equation with constant coefficient में convert करना चाह रहे हैं। So इसके लिए हम क्या करेंगे, we apply the some method of substitution and we can convert the problem into a linear differential equation with constant coefficient। So here we are taking x equal to e to the power of z। हम यहाँ पर x को z के वेरिएबल में लिख रहे हैं, और we can also write this as a z equal to log of x। यहाँ पर हमने x को रिप्लेसमेंट किया with e to the power of z को, e to the power of z से। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dz by dx। अगर हम dz by dx कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 1 by x। सो याद रहिए जो भी प्रॉब्लम है ना, x dy by dx, x स्क्वायर d2 by dx, इन सब का वैल्यू हम निकालेंगे ताकि हम प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर पाए इन टर्म्स ऑफ y एंड z में। और वो जो प्रॉब्लम बनेगी दैट प्रॉब्लम विल बी आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ताकि हम आसानी से उसमें से complementary function और particular integral निकाल पाए। So now we want to calculate dy by dx। So this dy by dx what we can write, dy by dz into dz by dx। अब मैं ऐसा इसे क्यों लिख रहा हूँ, हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमने जो लिया है x इक्वल टू ई टू दी पावर ऑफ z, और z जो फंक्शन है x का, या तो बोल सकते हैं x जो फंक्शन है हमारा z का। So we can write using chain rule dy by dz into dz by dx, because z जो है फंक्शन है x का, या x हमारा फंक्शन है z का। So now this value we can write dy by dz, और हमें पता है dz by dx की वैल्यू which is our 1 by x। So यहाँ से हमें मिल रहा है x dy by dx, x dy by dx is equal to dy by dz। यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की जो टर्म थी उसके साथ जो वेरिएबल था दैट इज एक्स डी वाई विच इज आवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी वाई बाई डी जेड से, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर y, नाउ y इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसको मैं नोटेशन वाइज लिख रहा हूँ, वी कैन राइट x d ऑफ y, d हमने माना है कैपिटल D, वी नो दैट द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड नाउ we are using a new notation that is d1। तो d1 को हम क्या मान रहे हैं, d1 is the derivative with respect to z, because इस प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट कर दिया है x को in terms of z में। So now we are going to write this one dy by dz is our, it's a d1 y। What is d1?
d1 is our d by dz. d1 is our d by dz. That is the derivative with respect to z. Similarly, we can calculate other term like x square d2 by dx to x cube d2 by x cube d3y by dx cube. So now we are going to calculate one more term. Suppose we want to calculate the second derivative term. तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमें कैलकुलेट करना है d2y by dx स्क्वायर. इसे हम क्या लिख सकते हैं, d by dx एंड dy by dx. और हमारी dy by dx की वैल्यू क्या थी, जो हम निकाले थे यहाँ पर dy by dx की वैल्यू थी हमारी 1 by x into dy by dz. सो वी कैन राइट दैट वैल्यू हियर. हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1 by x एंड dy by dz. सो नाउ वी कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं dy by dz को फर्स्ट फंक्शन मानूं और मैं डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में ऑफ द फंक्शन 1 by x, so that will be our minus 1 by x square. Now we are assuming that 1 by x as a constant and the derivative of this dy by dz. बट ये dy by dz का टर्म है, हमें डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x. बट यहाँ पर जो वेरिएबल है y और z है, यहाँ पर हमारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारी z है. So since we know that x is a function of z और z is a function of x, so चैन रूल के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, we can write d by dz, it's a dy by dz into dz by dx, because z is a function of x, so we can write d by dz and then dz by dx, so that this quantity we can write d2y by dz whole square. So now we can write minus 1 by x square, it's a dy by dz, and the value of a dz by dx, if you notice the value of a dz by dx, which is our 1 by x. So 1 by x and 1 by x, we are getting 1 by x square, and here d2y by dz square. हमने ऐसा क्यों किया था यहाँ पर कन्वर्ट, क्योंकि हमारी जो टर्म थी ना वो dy by dz थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, since z is a function of x, so we apply the chain rule, so that this two term we can write now d2y by dz square. एंड हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रही है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी है d2y by dx स्क्वायर. बट हमें चाहिए क्या, अगर हम नोटिस करें हमारी अगर लास्ट से हम देखें तो हमारी पहली टर्म क्या बन रही है a नॉट y. सो y से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या करना है, x को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ z में. सो x dy, दैट इज x इंटू dy by dx की वैल्यू मिली हमें dy by dz. इसके नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा हमारा x स्क्वायर d2 by dx2. सो वो टर्म हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से x स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y by dz स्क्वायर माइनस dy by dz. सो x स्क्वायर d2 by dx स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना वो होगी d2y by dz स्क्वायर माइनस dy by dz. और इसे भी हम नोटेशन के हेल्प से लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर d2y इज इक्वल टू, सी दिस थिंग वी कैन राइट इट्स ए d1. मैंने माना d1, क्या माना, d1 हमने माना था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. सो अगर मैं d1 होल स्क्वायर लिखूं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, यानी दो बार डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू z ऑफ आवर फंक्शन y, माइनस व्हाट वी कैन राइट d1y. याद रहे यहाँ पर d1 किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, z के रिस्पेक्ट में हमने माना है, और d क्या है, d जो डेरिवेटिव है वो x के रिस्पेक्ट में है. तो नाउ दिस थिंग वी कैन राइट, वी कैन टेक द कॉमन d1 एंड वी कैन राइट d1 माइनस 1 एंड y, यानी x स्क्वायर d स्क्वायर y की वैल्यू क्या होगी, d1 इंटू d1 माइनस 1. और यहाँ पर d1 क्या है, d1 इज आवर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि हमने x को माना है e टू द पावर ऑफ z, x इज अ फंक्शन ऑफ z. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट आवर थर्ड टर्म लाइक x क्यूब d3y by dx square, like x cube d3y by dx square and so on. We can calculate the fourth derivative term, fifth derivative term and so on. So now what we can write, so similarly we can calculate other term. So now what we can write, x cube, अगर हम d3y by dx
q की जो टर्म होगी ना उसकी वैल्यू होगी हमारी, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट d1 d1 माइनस 1 एंड d1 माइनस 2। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारी x dy बाई डी की जो वैल्यू थी ना, या x dy जो हमारी मिल रही थी पहली एक्सप्रेशन, वो थी d1y। जो हमारी सेकेंड वैल्यू थी लाइक एक्स स्क्वायर d2y विच इज आवर d1 इंटू d1 माइनस वाई, सॉरी d1 माइनस 1 इंटू वाई। जो हमारी थर्ड वैल्यू होगी ना एक्स क्यू d3y विच विल बी आवर d1 d1 माइनस 1 एंड d1 माइनस 2। याद रहे यहाँ पर d1 क्या है, d1 का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। सिमिलरली वी कैन राइट x4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x4 d4y इज इक्वल टू इट्स d1 d1 माइनस 1 d1 minus 2, we can go up to d1 minus 3 and y. So in that way we can write up to our xn dny, that is जो हमारी nth डेरिवेटिव वाली टर्म है ना उसको भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे आ रहा है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसी तरह हम थर्ड डेरिवेटिव पर जाएंगे, फोर्थ डेरिवेटिव पर जाएंगे एंड वी विल गेट आवर टर्म लाइक इन दिस फॉर्मेट और इन दिस फॉर्म। सो हमारी xn dny दैट इज xn dny बाई dxn की जो टर्म होगी ना वो क्या होगी, d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 एंड अप टू वी कैन राइट d1 माइनस ऑफ n माइनस 1, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारी x की वाली टर्म थी वो 2 तक जा रही थी, d1 माइनस 2। जो हमारी फोर्थ वाली टर्म थी x4 d4y थी वो d1 माइनस 3 तक जा रही है। यहाँ पर xn की जब टर्म होगी, जो nth डेरिवेटिव की टर्म होगी वो हमारी जाएगी अप टू n माइनस 1। तो इस तरह हमें एक फॉर्मेट मिला ताकि हम कन्वर्ट कर पाए। नाउ x वेरिएबल वी कैन कन्वर्ट, वी विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ z एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यानी जो जो वैल्यू आ रही है, लाइक हमारी वैल्यू क्या है, x dy लाइक x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 1 में हम लिख सकते हैं d1y। अगर हमारी x स्क्वायर d2y की वैल्यू क्या होगी, d1 इंटू d1 माइनस 1। इसमें कोई भी देख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है। x क्यू d3y की वैल्यू क्या होगी हमारी, d1 d1 माइनस 1 d1 माइनस 2। तो यानी यहां से हम क्या कर पा रहे हैं, हम आसानी से अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे रिमूव कर पा रहे हैं। So after replacing this value, after putting this value, we will get, हमें क्या मिलेगा, we will get the linear differential equation that is LD with constant coefficient, with constant coefficient। और ये जो फंक्शन होगी ना उस केस में हमारी फंक्शन किस फॉर्म में होगी, y एंड z के फॉर्म में होगी। सो हम इसको आसानी से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देन जो हमारी वेरिएबल किस में थी, हमारी वेरिएबल हमारी थी z में, सॉरी x में। सो हमें z की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। सो एट द एंड वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू log x। सो इस तरह हम देख सकते हैं ये इस तरह की इक्वेशन है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक पैटर्न है, इस इक्वेशन का एक पैटर्न है। सो आसानी से हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आवर कॉची-ऑयलर इक्वेशन। Okay, so now I am going to discuss the working rule of this Cauchy-Euler equation। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि या तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई रहेगी या हम उस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो सपोज द फर्स्ट स्टेप इज दैट द इक्वेशन मस्ट बी इन दिस फॉर्म। सो आइदर इट विल बी गिवन इन दिस फॉर्म या फिर हम इसे इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो लाइक an x to the power of n dn y plus an minus 1 x to the power of n dn minus 1 y and up to a naught y is equal to function of x। तो दिस इज आवर कॉची-ऑयलर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, कॉची-ऑयलर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन into a linear differential equation with constant coefficient। So we have to take some substitution like x equal to e to the power of z or z equal to log of x where x greater than 0, otherwise this log will not define। So now this assume, we are assuming that d1
इक्वल टू डी बाई डी जेड एंड वी ऑलरेडी नो दैट डी, द मीनिंग ऑफ डी इज आवर डी बाई डी एक्स। हम माने हैं कि डी क्या है हमारी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज आवर डी ऑपरेटर एंड डी वन एक न्यू ऑपरेटर मिल रहा है जो कि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में। तो जो हमारी एक्स डी होगी ना, लाइक एक्स डी इक्वल टू डी वन, जो हमारी एक्स डी होगी वो होगी हमारी डी वन। मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को हटा दिया ताकि हम आसानी से समझ पाए कि एक्स डी होगी हमारी डी वन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो होगी वो हमारी क्या होगी डी वन इंटू डी वन माइनस वन, एक्स क्यूब डी थ्री क्या होगी डी वन माइनस वन, डी वन माइनस टू। मैंने ऐसा क्यों, हम लोगों ने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फोर्थ ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो, हम आसानी से इसे कन्वर्ट कर पाए इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। सो अगर हम इस नोटेशन का यूज करेंगे तो हम आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो अगर हम इस सारी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे देन आवर इक्वेशन रिड्यूसेस टू एफ। हमारी जो ऑपरेटर होगी, पहले हमारी जो ऑपरेटर थी डी थी, आफ्टर दैट वी विल गेट ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डी वन। So fd1, now fd1 is our linear differential operator into y is equal to function of e to the power of z, क्योंकि पहले हमारी फंक्शन क्या थी f of x थी, यहाँ पर हम x के जगह पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं e to the power of z में। यानी जो इक्वेशन ये जो बन रही है ना, दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y एंड z। यहाँ पर y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड z क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे जनरल सोल्यूशन which is a combination of our complementary function and the particular integral. So after that we can find the solution, और वो जो solution होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, y is equal to some function of z में होगा, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है वो y and z में बनी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, we have to replace the value z equal to log x and we will get the solution in terms of x and y, so this will be the general solution। तो हम क्या, अगर हम फिर से हम समझे कि हमें क्या करना होगा, अगर हम कॉची ऑयलर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो हमें सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मेट देखना होगा कि क्या ये कॉची ऑयलर इक्वेशन है या नहीं। अगर ये है सो वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू एंड वी कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए d1 ऑपरेटर लाइक f of d1। यहाँ पर d1 क्या होगी हमारी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और उसके बाद हम z की वैल्यू log x रिप्लेस करेंगे। सो हमारी जो सॉल्यूशन होगी वो किसकी सॉल्यूशन होगी, कॉची ऑयलर इक्वेशन की सॉल्यूशन मिल जाएगी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन दी हुई है दैट इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ पर हमारे जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है इससे अभी हमें मतलब नहीं है, दिस विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स और इट कैन बी सम कांस्टेंट। हम देख सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म के साथ एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, यानी एक जो वेरिएबल है और इसका पावर 2 है जो कि हमारी डेरिवेटिव की जो ऑर्डर के टर्म है उससे मैच कर रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक्स डी वाई डी एक्स दैट इज एक वेरिएबल है एक्स, और यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म का जो डेरिवेटिव है वो 1 है और इसकी पावर 1 है। That means this is equation which is our equation of a type of a Cauchy-Euler equation. So suppose this is the equation number 1. So this equation और this is Cauchy-Euler equation. हम इसे Cauchy-Euler क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि Cauchy-Euler equation की जो फॉर्मेट है उससे सेटिस्फाई कर रहा है। So this is a Cauchy-Euler equation. Now how we can find the solution? So when you try to find the solution of this kind of equation, हमें क्या करना होगा, we have to convert the problem into a linear differential equation with constant coefficient। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, put or let x equal to e to the power of z। हमें x का वैल्यू e to the power of z रिप्लेस करना होगा, और we can also write z equal to log of x। Now we want to replace the value of this x dy by dx और x square d2 by dx2। इस वैल्यू को हमें निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ y एंड z में। सो हमें पता है, अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज आवर x dy दैट इज x dy बाई dx दैट इज आवर d1 y। हमने यहाँ पर y रखा है इसलिए राइट हैंड साइड में भी हमने यहाँ पर y रखा है। नाउ x स्क्वायर d2y which will we know that it's a d1 and d1 minus 1।
विथ वाई, या तो हम इसे हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारी जो वैल्यू होगी विच विल बी आवर डी वाई बाई डी जेड, और इसकी जो वैल्यू होगी इट्स डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। बट अगर हमारी जो इक्वेशन होगी कॉची यूलर इक्वेशन, अगर मान लीजिए कि ऐसा इक्वेशन हो रहा है कि फोर्थ ऑर्डर का हो रहा है इक्वेशन, उस समय हमें ये पूरा फॉर्मेट याद रखना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। सो अगर हम इस तरह के फॉर्मेट याद रखना है डी वन वाई डी वन इंटू डी वन माइनस वन, सो हम इस आसानी से लिख पाएंगे एंड वी कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डी वन ऑपरेटर। सो आई विल यूज और वी विल यूज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस नोटेशन d and d1. So now we can convert the problem in terms of d1 operator. So हमारी इक्वेशन क्या होगा? Now I am going to write from equation number 1. इक्वेशन 1 क्या आती है? x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर which is our x स्क्वायर d2y. So हम इसे क्या लिख रहे हैं? d1 and d1 minus 1 y plus this x dy by dx, that is x into dy, which is our d1y, which is our d1y. एंड द राइट हैंड साइड में क्या है हमारा? यहाँ पर कोई y का टर्म नहीं है, इसलिए हमने y का टर्म यहाँ पर नहीं लिखा है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा? यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड जो है ना वो log x है। सो log x यानी x की वैल्यू क्या होगी? e टू द पावर ऑफ z, सो विच विल बिकम इट्स अ z। या हम देख सकते हैं कि log x की जो वैल्यू है वो z है, यानी log x की जो वैल्यू है z है। नाउ वी कैन डू द सिंप्लीफिकेशन हेयर। सो हम क्या लिख सकते हैं इसे? d1 स्क्वायर minus d1 and here plus d1, मैं इसे एक ही ऑपरेटर में रख रहा हूं with y is equal to z. Now we can see that we can simplify, यानी हमें यहाँ पर d1 और d1 ये कैंसिल हुआ, so we are getting the equation like it's a d1 whole square y is equal to z. Sorry, we done mistake here. यहाँ पर हमारी क्या है? 2 है यहाँ पर, सो हमें 2 रखना होगा यहाँ पर 2। यू कैन चेक आवर इक्वेशन नंबर 1, 2x dy by dx, यानी 2 d1 y होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 d1 y। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन नाउ? सो हेयर वी कैन कैंसिल 1 d1, सो वी आर गेटिंग हेयर d1 होल स्क्वायर, और हमें क्या मिलेगा? प्लस d1 y इज इक्वल टू z। अब हम देख सकते हैं d1 का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर? d1 is our nothing but the derivative with respect to, this is our operator where the derivative we have to take with respect to z। यानी अब ये जो इक्वेशन बनी, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो नाउ वी कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है जो कि z की फंक्शन है। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y एंड z, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया प्रॉब्लम को x इन टर्म्स ऑफ z, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म दी हुई है वो y एंड z में दी है, यानी y हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड z हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हमें CF कैसे मिलेगा? First we want to find the CF of the equation number 2. So we have to write, हमें क्या लिखना होगा? auxiliary equation. So what will be the auxiliary equation? Here we have to take e to the power of mz. हमें लेना होगा ट्रायल सोल्यूशन इज आवर e to the power of mz, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारी वो z है। So that we will get our auxiliary equation which will be our m1 square, and since here d1 होल स्क्वायर प्लस d1 का मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, सो m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0, दैट इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू होमोजेनियस फॉर्म और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो हमें क्या मिला? m का वैल्यू, m विल बी इट्स 0 and -1, वी कैन टेक द कॉमन m, दैट विल बी m into m plus 1 and we are getting 0 and -1। सो हमारा जो रूट आ रहा है ऑक्सिलरी रूट, दैट इज 0 and -1, सो व्हाट विल बी आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? सो yc क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? yc लिख सकते हैं सिंस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो वी कैन राइट c1 e to the power of 0 and remember that here the independent variable is z, so 0 into z plus c2 e to the power of -z।
सो ये e टू द पावर ऑफ 0z का मीनिंग क्या हो रहा है, दैट इज 1. सो वी कैन सिंपली राइट c1 प्लस c2 e टू द पावर ऑफ माइनस z. ये हमारा हुआ complementary function for the equation number 2. Now we can find the particular integral. So yp equal to what we can write, यहाँ पर हमारी ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर जो है हमारी है ना वो d1 होल स्क्वायर प्लस d1 है. याद रहे d1 का मीनिंग केवल जस्ट ये बता रहा है कि दिस इज द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z. एंड फंक्शन क्या है हमारी, राइट हैंड साइड फंक्शन z है, यानी ये जो फंक्शन है ना एक मोनोनोमियल फंक्शन है. सो नाउ वी कैन अप्लाई आवर डी ऑपरेटर मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंस दिस इज ए मोनोनोमियल फंक्शन सो वी हैव टू राइट दिस ऑपरेटर. यहाँ पर ऑपरेटर क्या है हमारा, ऑपरेटर जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है एफ d1 विच इज आवर d1 होल स्क्वायर प्लस d1. सो हमें इसे 1 प्लस सम फंक्शन ऑफ d1 में कन्वर्ट करना होगा और बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमें इसे एक्सपैंड करना होगा. सो यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना होगा, सो वी हैव टू टेक द लोएस्ट डिग्री ऑफ d1. सो यहाँ पर लोएस्ट डिग्री ऑफ d1 क्या है, विच इज सिंपली आवर d1, क्योंकि एक टर्म है d1 होल स्क्वायर, एक टर्म है प्लस d1. सो वी कैन टेक द कॉमन d1, सो दैट विल बी आवर 1 प्लस d1 विथ z. यहाँ पर क्या बच रही 1. So now what we can write, it's a 1 by d1 and this 1 plus d1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 plus d1 to the power of minus 1 with z. Now we can expand this 1 plus d1 using our binomial expansion. So what we can write, हम क्या लिख सकते हैं इसे, it's a 1 minus d1, याद रहे d1 क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, प्लस d1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन. लेकिन ये हमारी जो फंक्शन है ना वो फंक्शन केवल z है, यानी हमारा सेकंड डेरिवेटिव पर ही वैल्यू 0 हो जाएगी. सो नो नीड टू राइट द अदर वैल्यू ऑल्सो. तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1 बाई d1. नाउ वी आर ऑपरेटिंग दिस फंक्शन z विद दिस ऑपरेटर. तो हम क्या लिख सकते हैं, z एंड d1 का मीनिंग क्या है, दैट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z दैट विल बी 1 एंड सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारी 0 आएगी. सिमिलरली इफ यू गो द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लाइक d1 क्यूब d1 4, सो सारी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन पर 0 हो जाएगी. सो नो नीड टू राइट दैट वैल्यू. तो हमें यहाँ पर क्या मिला, z माइनस 1, बट यहाँ पर 1 बाई d1 है. तो 1 बाई d1 का मीनिंग क्या हो रहा है, वी नो दैट d1 इज आवर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z. सो 1 बाई d1 क्या होगा, इट इज ए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, यानी z माइनस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू z. तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, z स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस माइनस z. सो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आई है वो कि जो कि हमारी z की टर्म में है, लाइक z स्क्वायर बाई 2 माइनस z. सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो नाउ वी वांट टू राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में दी हुई है. सो पहले हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 का. So the general solution will be y is equal to, it's a yc plus yp. And what is yc? हम ऑलरेडी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल चुके हैं जो कि हमारी c1 प्लस c2 e टू द पावर ऑफ माइनस z. So c1 प्लस c2 e टू द पावर ऑफ माइनस z, और हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकला है, जो कि है z स्क्वायर बाई 2 माइनस z. तो ये हमारी जनरल सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन नंबर 2, जो कि दी हुई है और जो कि बनी है इस इक्वेशन के फॉर्म में y एंड z के फॉर्म में. बट हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है x एंड y में. सो सिंस वी कन्वर्टेड द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ z एंड y, सो अब हमें यहाँ पर z का वैल्यू रिप्लेस करना होगा. सो z की वैल्यू क्या होगी, z इक्वल टू log x. सो इन द फाइनल और इन द लास्ट स्टेप, in the place of z we have to replace log x. That will be our final general solution of our equation number 1. So c1 plus c2 and e to the power of minus z. तो e to the power of minus z क्या होगा, हम जान रहे हैं कि e to the power of z हमारा x है. So e to the power of minus z that will be 1 by x.
या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z की वैल्यू हमारी क्या है log x विच विल बी आवर -1/x, सॉरी 1/x। यहाँ पर जो हमारी e टू द पावर ऑफ -z की जो वैल्यू आ रही है वो बनेगी 1/x प्लस z स्क्वायर इज आवर log x होल स्क्वायर divided by 2 minus log of x. So this is our general solution of this differential equation, that is our equation number 1. So याद रहे जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहेगा जो कि कॉची ऑयलर इक्वेशन और कॉची होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगी, उसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड देन वी कैन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन and at the end we have to replace the value of z equal to log of x ताकि जो हमारा सोल्यूशन बने वो x एंड y में हो, जो कि हमारा सोल्यूशन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में हो. So this is the general solution. Okay, now I am going to discuss another type of a differential equation जिसे हम बोलेंगे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि और हम बोल सकते हैं कि जो कि कॉची ऑयलर इक्वेशन की तरह ही है, या हम इसे बोल सकते हैं कि जो कॉची ऑयलर इक्वेशन से भी ज़्यादा जनरल फॉर्म में दिया हुआ और मोर जनरल फॉर्म में है. सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an a plus bx to the power of n d to the power of n y plus an minus 1 a plus bx to the power of n minus 1 d to the power of n minus 1. यहाँ मैंने d के ऑपरेटर के हेल्प से लिखा है, हम चाहे तो इसे डेरिवेटिव के टर्म में भी, नॉर्मल डेरिवेटिव के टर्म में भी लिख पाए. तो हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी nth डेरिवेटिव है उसके साथ एक टर्म है. पिछली बार जब हमारा कॉची ऑयलर इक्वेशन था उस समय था x to the power of n. नाउ वी आर टेकिंग a प्लस bx, एक ऐसी टर्म की पावर मिली जो कि लीनियर फॉर्म में है. यहाँ पर वेरिएबल ऑफ x है विथ सम कांस्टेंट भी है, a प्लस bx के फॉर्म में है. तो अगर हम a की वैल्यू 0 लें और b की वैल्यू 1 लें तो ये हमारी कैसी इक्वेशन बनेगी? वो हमारी इक्वेशन बनेगी कॉची ऑयलर इक्वेशन ही बनेगी. यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज मोर जनरल कंपेयर टू आवर कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यहाँ पर क्या, जो भी यहाँ पर n, सपोज करिए यहाँ पर n-1 है डेरिवेटिव है, तो एक वेरिएबल है लाइक a प्लस bx के फॉर्म में और उसकी पावर जो दी हुई है वो n-1 है. उसी तरह यहाँ पर d ऑफ y है तो एक टर्म मिल रहा है वो a प्लस bx. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज मोर जनरल देन द कॉची ऑयलर इक्वेशन. अगर इस इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 लेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी कॉची ऑयलर इक्वेशन. और यहाँ पर याद रहे जो हमने कोएफिशिएंट लिया है लाइक a0 a1 अप टू an, ये सारी क्या है, कांस्टेंट होगी. सारी क्या होगी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगी एंड an की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी. देन इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज आवर nth ऑर्डर लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी ये जो इक्वेशन है कोई नया इक्वेशन नहीं है, इट इज मोर जनरलाइज्ड देन आवर कॉची ऑयलर इक्वेशन. और जो हमारी फंक्शन है दिस इज ए फंक्शन ऑफ, और दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ आइदर x और कांस्टेंट. यानी हमें यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है, हमें जो पहले हमें मिल रहा था x टू द पावर ऑफ n, नाउ वी आर गेटिंग a प्लस bx टू द पावर ऑफ n. सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन? सो इस केस में हमें क्या करना होगा, इन दैट केस वी हैव टू रिप्लेस a प्लस bx इक्वल टू e टू द पावर z. पहले हमारा क्या था x, तो हमने माना था e टू द पावर ऑफ z. नाउ वी हैव टू रिप्लेस a प्लस bx इक्वल टू e टू द पावर ऑफ z. और इस केस में हमारे क्या बनेगा, z इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस bx. एंड वी कैन डू द सेम प्रोसीड्यूर. हम d निकालेंगे लाइक d ऑफ y, d स्क्वायर ऑफ y, d क्यूब ऑफ y. d का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. और इसे हम फिर से एक नए डेरिवेटिव, नए ऑपरेटर में यूज करेंगे लाइक d1 विच इज द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z. क्योंकि यहाँ पर हमने माना है a प्लस bx, जो टर्म था उसे हमने माना e टू द पावर ऑफ z. दैट मीन z इज ए फंक्शन ऑफ x और x इज ए फंक्शन ऑफ z. तो यहाँ पर क्या नया चीज मिलेगा और क्या एक्स्ट्रा थिंग मिलेगा, वंस वी कैलकुलेट d, सो हमें क्या मिलेगा जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना, वी विल गेट इन दैट टर्म द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b. सो वी कैन राइट b ऑफ d1. अगर हम d स्क्वायर y निकालेंगे so in that case we will get d1 minus 1, जो कि पहले भी आ रहा था कॉची ऑयलर इक्वेशन में, बट द
एक्स्ट्रा थिंग इज हेयर दैट बी स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। सिमिलरली इन डी क्यूब में क्या मिलेगा हमें, बी क्यूब, जो कि याद रहे जो भी ये बी क्या है, बी जो है हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और बाकी सारी चीजें सेम ही है, लाइक d1 d1 - 1 d1 - 2 एंड वी कैन गो अप टू nth डेरिवेटिव एंड वी कैन राइट b टू द पावर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर हमने nth डेरिवेटिव किया और हमारा टर्म मिला d1 d1 - 1 d1 - 2 एंड अप टू d1 - n - 1। तो इस तरह इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं ऑफ आवर लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर प्रोसीड्यूर सेम है एज आवर कॉची ऑयलर इक्वेशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें क्या मिल रही है, क्योंकि नाउ दिस इज नॉट ए एक्स, दिस इज ए सम फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एक्स। तो ये तो ए कांस्टेंट है, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस डेरिवेटिव टर्म लाइक डी ऑफ वाई, डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई, वी विल गेट द एक्स्ट्रा टर्म लाइक बी, बी स्क्वायर, बी क्यूब एंड सो ऑन। यानी जो कोएफिशिएंट है एक्स की, हम डेरिवेटिव के साथ जो भी पावर होगा, जो भी डेरिवेटिव की टर्म होगी, वहां पर जो कांस्टेंट की पावर होगी वैसे ही हमें टर्म मिलेंगे। लाइक बी, इफ यू कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल रहा है बी, हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमें बी स्क्वायर मिला, हमें थर्ड डेरिवेटिव निकाला हमें बी क्यूब मिला। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। सो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज सेम एज आवर कॉची ऑयलर इक्वेशन, और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज मोर जनरल देन आवर कॉची ऑयलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, right? So now we are going to discuss some problem, that question which is asked in GATE. So this question was asked in GATE 2019 in mechanical engineering paper of set 2. So question क्या है, question is that a differential equation is given as x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus 2y equal to 4. अब इसका बोल रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट c1 एंड c2 इज दिस y इक्वल टू c1 by x plus c2x plus 4, y इक्वल टू c1 by x square plus c2x plus 2, y इक्वल टू c1x cube plus c2x plus 2 एंड y इक्वल टू c1x square plus c2x plus 4। ओके, सो हम देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन जो दी हुई है वो हमारी कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यानी इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, एंड देन वी कैन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सो हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन? सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, हमने माना ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। सो दैट इक्वेशन नंबर 1 इज आवर कॉची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिप्लेसमेंट करना होगा, पुट x इक्वल टू, और हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू इट्स e टू द पावर ऑफ z, यानी हमारी जो z की जो वैल्यू होगी ना वो z इक्वल टू log ऑफ x होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x d, और x d y का मीनिंग क्या हो रहा है, दैट इज द x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए d। तो लाइक x स्क्वायर डी टू वाई माइनस 2x dy प्लस 2y इक्वल टू 4। सो मैं यहाँ पर x dy जो कि हमें पता है क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी आवर d1y, और यहाँ पर d क्या है, d का मीनिंग है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और d1 का मीनिंग हमने क्या देखा था, d1 का मीनिंग हो रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि हमने माना है यहाँ पर x इक्वल टू इट्स e टू द पावर ऑफ z। सो व्हाट विल बी आवर x स्क्वायर d2y, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ये वैल्यू होगी हमारी d1 माइनस 1 इंटू वाई। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई ना वो की कोची ऑयलर इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी हमें जो जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू पड़ेगी इस x dy बाई डी एक्स की एंड x स्क्वायर d2 बाई डी एक्स की। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सो फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, सो एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर d1 माइनस 1 y माइनस 2x dy बाई डी एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं -2 एंड x dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी होगी d1y। ये वैल्यू कैसे आ रहा है, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में देख चुके हैं कि इस तरह की वैल्यू आएगी।
और हमारा बचा हुआ टर्म क्या है, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो नाउ वी वांट टू डू द सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है हम इसे ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए D1 ऑपरेटर। सो क्या लिख सकते हैं, D1 होल स्क्वायर माइनस D1 एंड माइनस 2D1 प्लस 2, विद दैट वी कैन राइट y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करके देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है D1 होल स्क्वायर माइनस 3D1 and plus 2 with y is equal to 4. So now suppose this is the equation number 2. हम मान रहे हैं कि ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द ऑपरेटर ऑफ D1 which is a constant coefficient problem. So अब यहाँ का हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का दैट इज इक्वेशन नंबर 2 का हम निकाल सकते हैं जनरल सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, फर्स्ट हमें निकालना होगा we have to calculate the complementary function. So we can write yc, but yc हमें कैसे निकालना होगा, yc के लिए हमें चाहिए auxiliary equation. So first we'll try to find the auxiliary equation, then we can write the complementary function. So auxiliary equation will be, it's m square minus 3m and plus 2 is equal to 0. So this is the auxiliary equation corresponding to the homogeneous differential equation of this equation number 2. So यहाँ पर हमारी m की वैल्यू क्या आएगी, हमारी m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 and 2. That is the auxiliary root will be our 1 and 2. So what will be the complementary function yc, what we can write, हम complementary function क्या लिख सकते हैं, हमें z में लिखना होगा. So c1 e to the power of z plus c2 e to the power of 2z. हम इसे चाहे तो यहाँ पर x में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज z, z इक्वल टू लॉग x, या हम बोल सकते हैं x इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ z, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं c1x, क्योंकि x क्या है हमारी e टू द पावर ऑफ z है, सो e टू द पावर ऑफ 2z क्या होगी हमारी x स्क्वायर, सो c2x स्क्वायर। ये हमारी बनी yc इन टर्म्स ऑफ x लाइक c1x प्लस c2x स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, वी कैन राइट yp इक्वल टू, यहाँ पर हमारा ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ हमारा दिया हुआ है, जो ऑपरेटर होगी वो इन टर्म्स ऑफ D1 ऑपरेटर में होगी, दैट इज द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z. सो D1 होल स्क्वायर माइनस 3D1 एंड प्लस 2, और हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, हम राइट हैंड साइड में देख सकते थे कि हमारा जो प्रॉब्लम था ना वो 4 था राइट हैंड साइड में, और हमने जब इसे कन्वर्ट किया ना सो 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि देयर इज नो टर्म ऑफ x, सो दैट विल बी आवर 4. सो नाउ वी वांट टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस वन. सो ये किस फॉर्म में हो रही है, इसे हम किसी भी, आइदर हम इसे एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म से कर सकते हैं, या फिर हम मोनोमियल वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल वाला मान रहा हूँ, लाकि जैसे हमारा फंक्शन है 4 इंटू इट्स ई टू द पावर ऑफ 0z, क्योंकि ये D1 का मीनिंग क्या हो रहा है, D1 इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, यानी इसे हम कंसीडर कर सकते हैं 4 इंटू ई टू द पावर ऑफ 0z. सो 4 एज ए कॉन्स्टेंट एंड इन द प्लेस ऑफ ए D1 वी कैन रिप्लेस 0, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन दैट विल बी आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 बाई D1 के जगह पर हम 0 रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 एंड प्लस 2, सो दैट विल बी 2 एंड हियर वी आर गेटिंग 4, हमें 4 एक टर्म बचेगा, सो 4 बाई 2 दैट इज 2. याद रहे यहाँ पर मैंने किया सिंपल सा, मैंने मान लिया 4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो हमें यहाँ पे एज्यूम करें ई टू द पावर ऑफ 0z, या हम मोनोमियल वाला केस भी मान सकते हैं, ये x टू द पावर ऑफ 0. सो वी आइदर वी कैन अप्लाई द रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 when you try to finding the particular integral. अगर कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई रहेगी तो आइदर हम एक्सपोनेंशियल में मान सकते हैं या पॉलिनोमियल भी मान सकते हैं, चाहे जिसमें भी माने हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल सेम आएगा. सो बेटर टू अप्लाई द एक्सपोनेंशियल वन, ताकि हम z की वैल्यू, सॉरी D1 की वैल्यू रिप्लेस कर पाए डायरेक्टली. सो हमें यहाँ पर मिला yp इक्वल टू 2. सो इस yp में कोई भी z का टर्म नहीं है, सो हम क्या लिख सकते हैं, जनरल सोल्यूशन, हमारी जो जनरल सोल्यूशन होगी y इक्वल टू इट्स yc प्लस yp, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भी मैंने x में कन्वर्ट कर चुके थे पहले ही हम,
और यहाँ पर वाई पी में 2 है, यहाँ पर कोई जेड का टर्म नहीं है, सो वही हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल। सो हम क्या लिख सकते हैं, C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो ये जो बना हमारा क्या बना, ये हमारा बना कंप्लीमेंट, ये हमारा बना जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। ओके, सो नाउ वी कैन चेक आवर ऑप्शन। हम ऑप्शन देख सकते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर। ऑप्शन जो है हमारा है y इक्वल टू C1x प्लस C2x प्लस 4, y इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस 2, y इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस 2 एंड y इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा जनरल सोल्यूशन मिला है ना, वो क्या है, C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस 2, यानी जो हमारा ऑप्शन जो C होगा ना, वो करेक्ट होगा। Okay, so now we are going to discuss one more problem which was asked in GATE 2019 in civil engineering paper of set 1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अगर हम देखें ये इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया था, जो कि गेट 2019 में ही आया हुआ है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया था। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक 4 दिया हुआ था, बट इन दैट सिविल इंजीनियरिंग द राइट हैंड साइड इज 0, यानी इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में वो सेम ही है। बट हेयर द एक्स्ट्रा थिंग इज गिवन हेयर, यहाँ पे क्या दिया हुआ, given that the value of y at x equal to 1 is 0 and y at x equal to 2 is 2, यानी यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, that this two condition is our बाउंड्री कंडीशन। सो ये किस तरह की बाउंड्री कंडीशन है, ये हमारी डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन है। याद रहे हमने कई प्रकार के बाउंड्री कंडीशन देखे थे इन आवर लेक्चर नंबर 2। अगर आपने वो लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, सो यू कैन गो एंड यू कैन सी द लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने देखा कि देर आर 5 टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन लाइक डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, न्यूमन बाउंड्री कंडीशन, रॉबिन मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन, रॉबिन कंडीशन, मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन एंड द पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। तो ये जो हमारी कंडीशन दी हुई ना, दैट बाउंड्री कंडीशन इज आवर डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। सो द क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3, हमें बताना कि वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3 क्या होगी। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टाइप आंसर, यानी हमें यहाँ पर कुछ आंसर फिट करना होगा, यहाँ पर हमें आंसर बताना होगा कि क्या होगा इसका वैल्यू y एट x इक्वल टू 3 पर। तो अभी हमने देखा इस इक्वेशन का, और हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड किया था और जनरल सोल्यूशन भी फाइंड किया था। तो हम देख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन जो दिया हुआ है, दिस इज आवर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन और द कॉची ऑयलर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, इसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2। लेकिन वहां पर हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म नहीं होगी, यानी यहाँ पर जो हमारा जनरल सोल्यूशन बनेगा ना, वो जनरल सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने से ही हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ए आफ्टर कन्वर्टिंग वी विल गेट ए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारी जनरल सोल्यूशन क्या होगी, जनरल सोल्यूशन विल बी y इक्वल टू वाई सी, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन नहीं है इसलिए। सो वाई सी विल बी, हमने लास्ट एग्जाम्पल में और लास्ट अभी हमने जो पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हमने जो कि क्वेश्चन आया हुआ था गेट 2019 में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या था, C1x प्लस C2x स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है सेम ही इक्वेशन है। सो नाउ वी आर गेटिंग दिस वन। अब हम क्या निकालना चाहेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस टू बाउंड्री कंडीशन दैट इज y एट x इक्वल टू 1 एंड y एट x इक्वल टू 2 पर वैल्यू दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू बाउंड्री कंडीशन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। तो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, y एट x इक्वल टू 1 विच इज 0। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 एंड द अदर बाउंड्री कंडीशन इज आवर y एट x इक्वल टू 2 विच इज 2। So now what we can write, हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, that will be 2C1 प्लस x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, that is 4C2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पर y एट x इक्वल टू 2 पर क्या है, वैल्यू इज गिवन 2। सो वी कैन राइट C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 1। So suppose this is the equation number 1
and this is the equation number 2. हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन मिल रहे हैं in terms of C1 and C2. So we can solve these two 1 and 2 and we will get the value of C1 and C2. So हम कैसे C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे? If you subtract the equation number 1 from the equation number 2, we will get the value of C2. तो अगर हम C2 minus C1 करेंगे, in that case C1 will cancel and we will get C2 equal to 1. अगर हमारी C2 equal to 1 है तो हम इक्वेशन नंबर 1 से C1 क्या होगी हमारी? C1 will be minus C2 which will be minus 1. यानी C1 हमें क्या मिला? -1 और C2 हमें क्या मिला? 1. So what will be our y? What will be the general solution now? So हम जनरल सोल्यूशन में हमें क्या मिला है? C1 की वैल्यू मिली है एंड C2 की वैल्यू मिली है. So ये एक तरह का पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? y equal to, since C1 is our -1, so that will be our minus x, and C2 is our 1, so that will be our x square. हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ y at x equal to 3. So -3 and +3 whole square. So 3 whole square is 9 and -3 is, so 9 minus 3 that will be 6. यानी हमारी जो वैल्यू होगी y की at x equal to 3 पर वो क्या होगी? 6 होगी. यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, जो न्यूमेरिकल टाइप जो आंसर होगा ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? 6. दैट मीन्स y at x equal to 3, the answer will be 6. The answer will be 6. Okay, so now we are going to discuss the summary of this lecture. So इस लेक्चर में हमने क्या देखा? कॉची ऑयलर इक्वेशन के बारे में पढ़ा. हम देख सकते हैं कि कॉची ऑयलर इक्वेशन क्या था? एक प्रकार का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो कि कुछ स्पेशल फॉर्म में दिया हुआ था, जो कि हमारी जो भी डेरिवेटिव की टर्म थी उसी ऑर्डर के या उसी पावर का एक वेरिएबल था. और हमने ये भी देखा इस लेक्चर में लीजेंडर इक्वेशन, जो कि कॉची ऑयलर इक्वेशन का मोर जनरल फॉर्म है, लाइक a प्लस बी एक्स के फॉर्म में. अगर हम a की वैल्यू वहां पर 0 और b की वैल्यू 1 लेंगे, उस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी, दैट इक्वेशन विल बी आवर कॉची ऑयलर इक्वेशन. याद रहे ये जो टॉपिक है कॉची ऑयलर इक्वेशन, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में हर एक स्ट्रीम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. आइदर सम क्वेश्चन विल बी गिवन लाइक डायरेक्टली फाइंड द जनरल सोल्यूशन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिए जा रहे हैं and some boundary condition or some initial condition is given and you have to find the value at some particular point. So this topic is very important. Okay, so I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt or any query, please do the comment on our comment section. You can also join our Telegram group and you will get the link in our description box of this video, and you can ask the question in Telegram group also. So thank you for your time and keep watching the video. Till then, take care and bye to all.